और my perspective is totally different. And अगर हम right to information की अगर हम बात करते हैं तो we don't have to only see right to information law. What we also need to see is हम किससे deal कर रहे हैं. The government organizations, जो government officers हैं, हमें उनके psychology को भी समझना बहुत ज़रूरी है. And of course, the third thing is, the most important thing is your body language. जैसे कि कहते हैं ना कि 3-letter word ego destroys 8-letter word relationship. So that is very important. तो क्या होता है कि जब तक आप ये 3 चीज़ का combination नहीं करोगे तो you will not get success. There have been times when I have filed RTI. I mean, in my entire 43 years of activism, और जब से RTI आया है, महाराष्ट्र राइट टू इंफॉर्मेशन 2002 till date, मेरा कोई भी एप्लीकेशन गया है तो PIO दोनों हाथों से वेलकम करता है. और in case I go for inspection, they open the doors, they tell their colleagues कि ये साहब अगर आएंगे तो आप इनको जो चाहिए दे दो. They have also gone to an extent that हम ऑर्डर नहीं लिखते, आप लिख लो. You know, so psychology and all this thing plays a very major role. Now we are talking about basic. Your presentation is basic. Right to information is equal to transparency, is equal to accountability, which is curb on corruption, and finally we get good governance. महात्मा गांधी सर, मेरे घर में भी लोग मुझे बोलते हैं आप तो गांधीवादी. मेरे बच्चे कहते हैं. So first they will ignore you, then they will laugh at you, then they will fight you, and then you will win. क्या होता है कि जब आप कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जब डील करते हैं, एंड स्पेशली राइट टू इंफॉर्मेशन इज, आपको मालूम है कि द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैव बीन टॉट टू विथहोल्ड इंफॉर्मेशन, बट ये लॉ आने के बाद उनको डाइवर्ज करना पड़ रहा है इंफॉर्मेशन, तो बहुत उनको तकलीफ हो रही है. यू नो, सो कहने का मतलब ये है कि वो आपको थका देंगे. दे मेक यू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. और वो साइकोलॉजी जानते हैं कि भाई एक हफ्ते तक आप भागम दौड़ी करोगे, उसके बाद आप थक जाओगे एंड यू विल सिंपली लीव दैट मैटर. तो आपको ऐसा नहीं करना है. आपको उनको ये दिखाना है, ये उनके माइंड में डालना है, व्हाट कम में, आई विल नॉट लीव दिस इशू. सो व्हाई डिड वी नीड this right to information? Because it's India has got a vibrant economy, lot of funds for development and increasing corruption. आज तो ये लेवल हो गया कि आज तो करप्शन कहीं पर भी बचा नहीं है. हम जुडिशियल रिफॉर्म के पीछे भाग रहे थे, मगर आज जुडिशरी का जो हाल है आज के तारीख में, it is come to the worst. Then you have the control in the hands of citizens who gets to audit. तो right to information आने के बाद एक citizen is empowered to audit what he wants to and get the required information, provided he uses the right to information in a very responsible manner, and of course he should check his body language and his. It's the very good. It's an improvement in governance for better delivery system. Citizens get the same right. Any information that cannot be denied to Parliament or Legislature cannot be denied to a citizen. जब शुरू में RTI आया था तो लोग को तो एक्टिविस्ट लोग भी मतलब मैंने बिल्कुल आसमान में मतलब हवा में उड़ रहे थे कि भैया ये तो वेपन है और ये एटम बॉम्ब है. But basically, I believe that it is a powerful tool in the hands of citizens, and they have to use it in a responsible manner. When we talk about the right to information around the world, all developed countries have Right to Information Act in place. Sweden was the first country to have Right to Information Act enacted in the year 1766.
India was the 40th country to have this right to information. It's a fundamental right. Information is a fundamental right. Then why we need the special act? It formalizes a way to obtain information within a legal framework. It provides visionary and framework for the operational part of the RTI process. It provides enforcement mechanism. It provides provision for penalties. It provides provision to be compensated. In fact, I will tell you that as far as MCGM is concerned, I was the first person जिसके वजह से उन्होंने जो compensation का जो notification उन्होंने निकाला, they didn't know how to compensate. Because I have been under the commissioner in the Apex committee, MCGM Apex committee. तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा है because वो एक passion था. I had the choice either to make money or to follow this passion. So I chose the latter. So कोई भी डिपार्टमेंट हो कैसे वर्क करती है वो सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए. तो जब आप RTI फाइल करते हैं तो it is not simply just take a format and just fill it and submit it. You need to do research on that. आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप मांग रहे हो उसके डीप में जाके व्हाट आर द क्राइटेरियाज सारे चीज़ों को समझ के then you will be able to draft the application in a very good manner. So the struggle to demand transparency began in a remote village of Rajasthan under the National Rural Employment Guarantee Scheme, now say about 20 years ago. It was noticed that laborers would get much less pay than the amount recorded in their muster. So an IAS officer, अभी ये अरुणा रॉय जो है, अरुणा रॉय, निखिल देव, all these people, they are we are all associated together. They are in Rajasthan and Delhi, and they were the people who drafted the Right to Information Act. So we have been working in very close proximity with all these people, and in fact I have been representing the Maharashtra government for right to information in Delhi. So coming back, it was noticed that laborers would get much less payment than the amount recorded in their muster. So an IAS officer, Miss Aruna Roy, she took voluntary retirement और फिर उन्होंने सोचा कि भाई हमें सूचना कैसे मिलनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो सारे चीज़ों के पीछे which was flatly refused under the excuse of Official Secret Act. तो आज अगर हम कोई भी नौकर भी रखते हैं घर पे तो हम जानना चाहते हैं कि भाई हमने अगर उनको बाजार लाने के लिए कुछ पैसे दिए हैं तो उसने कितने पैसे खर्चे किए और कहाँ पैसे खर्चे किए. It is our fundamental right to know. So the fight began with a demand to open up the muster and other files not only of NREG schemes but also of other rural development projects. Thus the struggle began to have a Public Disclosure Act in place, and that is how the entire process started. कि भाई कैसे उनको accountable ठहराया जाए. So besides Aruna Roy, Nikhil Dev, they're all very close friends of mine. Shekhar Singh is there. Anna Hazare, we have worked very well with Anna Hazare for this particular movement. In fact, Arvind Kejriwal also started with the right to information. उनका NGO था परिवर्तन. तो हम काफ़ी क्लोज थे, मतलब हमने राइट टू इंफॉर्मेशन में काम किया है राइट फ्रॉम द इंसेप्शन डे. So they all demanded a Transparency Act, which is now called the RTI Act. Right to information जो है, first it came in Maharashtra, known as Maharashtra Right to Information year 2002. At that point of time, commission जैसी कोई चीज़ थी नहीं. It was not existing.
एंड मतलब यानी बहुत इट वाज नॉट जम्मू एंड कश्मीर वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन at that point of time. Then in year 2005, the RTI Act 2002 was repealed and Central Right to Information Act came into being, which included the state of Jammu and Kashmir. तो जब हम दिल्ली में जब नेशनल कन्वेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र को, तो दिल्ली से मतलब कश्मीर से भी ऑल ओवर द कंट्री से एक्टिविस्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल स्टेट्स को, हम सब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं विद ऑल द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड इट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. यहाँ पे एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि हर स्टेट में क्या हो रहा है, किस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन किस दिशा में जा रही है, हाउ वी कैन काउंटर दी शॉर्टकमिंग्स, ये सारी चीज़ों को हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था. और वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हमने आगे भी लोगों को मतलब इन्हें काफ़ी सिखाया है, प्रोपेगेट किया है इस पर्टिकुलर लॉ को लेके. In the year 2009, the Right to Information Act was extended, that is, to the state of Jammu and Kashmir. Interestingly, Right to Information Act was presented before the Standing Committee of the Parliament, and 158 times it was amended and it was finally passed. What is information? Information is आप फाइल्स देख लीजिए, फोल्डर्स देख लीजिए, कोई भी डिजिटल फॉर्म में है, ईमेल्स हैं, एनीथिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारी चीज़ें वो हर चीज़ आरटीआई के परव्यू में आ जाती है. बिफोर यू फाइल एन एप्लीकेशन, मेक अ थॉरो स्टडी ऑफ दैट, जो सब्जेक्ट को आप एड्रेस करना चाह रहे हो. अगर आप बीएमसी कोई इशू को, इंक्रोचमेंट को कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, so that you may know what exactly you want to ask, how you want to frame the questions. ठीक है ना. बीच में ऐसा सवाल आया था कि भाई आप सवाल नहीं पूछ सकते आईटीआई में, but again those questions which are pointing to a particular document or digital format can be given under RTI. And the PIO cannot, the Public Information Officer cannot refuse you any information. ठीक है. It covers non-government organizations, NGOs हैं, which are substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government. अब जैसा कि अगर हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ले लेंगे, तो मद्रास का भी हाई कोर्ट का जजमेंट था, बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि प्राइवेट बॉडीज़ को वो नहीं आती है अनलेस इट इज़ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड. और जो रेगुलेटरी बॉडी है, आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो अंडर आरटीआई. तो अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है आपका डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार है, जॉइंट रजिस्ट्रार है. ये सब लोगों को आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उनकी रेगुलेटरी बॉडी MERC है, तो आप MERC में एप्लीकेशन लगा के आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो. It covers the executives, judiciary and the legislature. It includes information related to private bodies, as I said, which can be accessed under any other law for the time being in force. State government में 3 levels हैं. एक तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जिसको एप्लीकेशन आप जिसको एड्रेस कर सकते हो अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन. उसके बाद फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी आता है. उसके बाद फाइनली आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आता है. नाउ अगर हम सेंट्रल बॉडी को अगर देख लें तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसको आरटीआई आपको एप्लीकेशन को एड्रेस करना है. अगेन फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी है. आपको ये देखना है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज़ में अगर आप आरटीआई एप्लीकेशंस लगाते हैं तो जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी है
उसमें वो हियरिंग्स कंडक्ट नहीं करते। स्टेट में कैसा है, एवरी स्टेट हैज़ गॉट द पावर टू ड्राफ्ट देयर ओन रूल्स, बट सेंट्रल में ऐसा है कि जब फर्स्ट अपील में आप जाते हैं तो वो आपको हियरिंग के लिए नहीं बुलाते हैं, और वहाँ पर भी अपना सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी जो है या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, उसमें आपको कोर्ट फीस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पोस्टल ऑर्डर बोलते हैं या डीडी बोलते हैं, जो भी है एज आरटीआई फीस, वो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है टू एड्रेस ऑल सेकेंड अपील एज वेल एज कंप्लेन अंडर सेक्शन 18 of the Right to Information Act from across all state against PA governed by central government. Now मैं आपको ये बताऊं कि आपका एक तो RTA एप्लीकेशन है, उसके बाद आप फर्स्ट अपील में जाते हैं। अगर वहाँ पर भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है या इनकम्प्लीट मिलती है, whatever the case may be, then you going for second appeal with the State Information Commission और द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब इसके बाद ऐसा है कि यू कैन ऑल्सो कंप्लेन टू द स्टेट एज वेल एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नाउ कंप्लेन अंडर राइट सेक्शन 18 क्या है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, बट पीआईओ के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सो जो कंप्लेन अंडर सेक्शन 18 है, इट ओनली डील्स विद मतलब इन्हें पीआईओ को दंडित ठहराना और उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, बट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। उसके अगर हम आगे जाते हैं कि अगर आपने आरटीआई फाइल किया, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, आपने फर्स्ट अपील में आपने गए, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, सेकेंड में आपको ऑर्डर मिला मगर फिर भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, then you have the option of complaining under section 18 of the RTI Act, and thereafter you can approach the High Court. ये जैसा आपको डिफरेंट ऑप्शन मैंने बताया है, फर्स्ट एंड सेकेंड अपील है, कंप्लेन अंडर सेक्शन 18 है, देन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन मिल सकती है if it concerns life and liberty. There is a very thin line between a normal application and an application under section 7(1) of the RTI, which is life and liberty. क्या होता है, जैसा कि आपने बीच में सुना होगा 1.5 year back ओपन मैनहोल ओपनिंग में कई लोग गिर के मर गए थे। So that kind of thing can demand that section 171 of the RTI Act can be used, whereby you can get information within 48 hours. ठीक है ना? बट अगर समझो आपने कोई दूसरी चीज़ में अगर आपने सेक्शन 7(1) का उपयोग किया और पीआईओ को ऐसा लगा कि भाई ये लाइफ एंड लिबर्टी में एंटर नहीं होता है, then they will convert it into a normal RTI application, and then जो उनका जो टाइम प्रोसेस है 30 days है, वो that will follow. Then first appeal है, then second appeal है. Are you getting it? Yeah. Correctly? Okay. Application under section 6(1) along with 2JI asking for inspection of work, documents, records, etc. आपके पास एक फोर्थ ऑप्शन है कि यू कैन इवन आस्क फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 2JI। अब क्या हो जाता है, हमने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है कि आपने RTI एप्लीकेशन किया, पीआईओ ने आपको बोला कि नहीं आप एक काम करिए, इट इज़ वॉल्यूमिनस, यू कम एंड टेक इंस्पेक्शन। तो एज पर द RTI एक्ट एंड एज पर एस्टैब्लिश लॉ they cannot force you to come for inspection. उसमें हाई कोर्ट्स के कुछ जजमेंट्स भी हैं कि वो फोर्स नहीं कर सकते। आपने हार्ड कॉपी भी मांगा है और आपको फिजिकल वो बोल रहे हैं कि आप आओ और इंस्पेक्शन लो और देन टेक द डॉक्यूमेंट्स कॉपी, यू कैन रिफ्यूज दैट। अब अगर आपने डिसाइड किया कि आपको इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो जब आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो
वो बदमाशी करते हैं PIOs, पब्लिक अथॉरिटी, कि आपको एक ओपन हॉल में छोड़ दिया जिसके अंदर सारे रैक्स से और यानी सीलिंग से लेके नीचे तक मतलब सारे आपके वो फोल्डर्स हैं, समझे ना, वो कपड़े के इसमें बने हुए। तो उसमें क्या होता है, वो आपको बोलते हैं कि भाई आप ढूंढ लो। तो देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन RTI में जिसमें इट मैंडेट्स द पब्लिक अथॉरिटी कि अगर आप इंस्पेक्शन के लिए बुला रहे हैं तो दे हैव टू मेक श्योर दैट इट इज दोस फाइल्स आर इंडेक्स्ड एंड कैटलॉग्ड। अगर वो ऐसा नहीं देते हैं तो यू कैन रिफ्यूज टेकिंग द इंस्पेक्शन। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल शेयर विथ यू जो अपना स्पेसिफिक सेक्शंस है, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। एंड यू कैन इवन हैव दिस आल्सो PPT। ठीक है ना। अब अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं, द PIO to reply the RT application normally it is 30 days। अभी क्या होता है कि ये इतने बदमाश लोग हैं कि इनके पास इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल भी रहता है, तब भी वो आपको देना नहीं चाहते, या अगर उनको देना है तो वो लास्ट डे तक वेट करेंगे, 30 डेज तक वेट करेंगे। तो वो दैट इज मतलब है ना, इट इज नॉट राइट ऑन द पार्ट ऑफ द PIO। बट RT एप्लीकेशन करते हैं तो 30 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन का रिप्लाई उनको देना है। वेदर अगर वो देते हैं ठीक है, अगर वो नहीं देते हैं तो इट कैन बी डीम रिफ्यूजल एंड यू कैन टेक्निकली गो इन फॉर फर्स्ट अपील। ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट appellate authority to pass the order 30 days from the receipt of the first appeal application, which includes intimation, conducting of the hearing and delivery of order, or for maximum 45 days। ये फर्स्ट अपील की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने RTI एप्लीकेशन फाइल किया एंड इट पर्टेन्स टू थर्ड पार्टी, दैट इज सेक्शन 11, तो वो क्या करेंगे, वो थर्ड पार्टी को वो फॉरवर्ड करेंगे एप्लीकेशन। दे विल सेंड हिम अ नोटिस कि भाई दिस एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड, whether we should divulge the information or we should not divulge the information. Now, यहाँ पे आपको देखना है कि थर्ड पार्टी अगर आपको रिफ्यूज करता है तो ये PIO का डिस्क्रिशनरी पावर्स रहते हैं कि इफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन pertains to larger public interest, then even without sending him a notice to the third party, the PIO can divulge the information, but normally वो करते ऐसा नहीं। ओके, नाउ अगर आप थर्ड पार्टी यानी अगर आपने एप्लीकेशन किया एंड इट पर्टेन्स टू थर्ड पार्टी, तो जब वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है वो थर्ड पार्टी को नोटिस जो इशू करता है, तो उनको 5 डेज का अलाउंस दिया जाता है और वहाँ से रिप्लाई आने के लिए अनदर 5 डेज का वो दिया जाता है। तो बेसिकली 45 डेज में आपको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत आपका वो आपको इंटीमेशन ऑफ हियरिंग देंगे कि ये तारीख को आपकी हियरिंग शेड्यूल हुई है, एट पर्टिकुलर टाइम आपका हियरिंग कंडक्ट होगा। हियरिंग कंडक्ट होने के बाद जो रेलेवेंट ऑर्डर्स हैं वो सारे प्रोसेस को मिला के 45 डेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अगर समझो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के इंफॉर्मेशन के ऑर्डर देने के बाद भी अगर वो PIO इंफॉर्मेशन नहीं देता है, देन डोंट वेट एनी फर्दर। टेक्निकली आप सेकेंड अपील के लिए जाइए इमीडिएटली और विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, उसका टाइम लिमिट 90 डेज है। और जब आप सेकेंड अपील में एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसका कुछ टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि कितने पीरियड में हियरिंग होने वाली है, कब आपको ऑर्डर आएगा, वो एक्ट में डिफाइन किया ही नहीं गया है। वी हैव पुट अ पिटिशन, PIL पिटिशन हमने फाइल किया हुआ है उसके बारे में। एंड तो और अगर सेकेंड अपील में भी अगर आपका नहीं होता, जो जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन वेरी वेल अप्रोच दी बॉम्बे हाई कोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया 48 आवर्स फॉर मैटर्स रिगार्डिंग लाइफ एंड लिबर्टी है,
You have to be very very sure, as I told you, कि there is a very thin line between normal circumstances and life and liberty. समझे ना? तो ये आपको देखना है. Then the PIO transfers. अभी कैसा होता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो मंत्रालय में है, उसके अंतर्गत बहुत सारे डेस्क हैं, ठीक है ना, बहुत सारे डेस्क हैं, बट दे आर वन पब्लिक अथॉरिटी. सिमिलरली MCGM अगर आप देखें तो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, and so on and so forth. There are so many departments. They are one particular public authority जिसके अंतर्गत ये सारे डिपार्टमेंट हैं. और इसके पीछे हाई कोर्ट का ऑर्डर्स भी आया हुआ है कि यू कैन नॉट टेक दिस डिफरेंट डिपार्टमेंट एज डिफरेंट पब्लिक अथॉरिटी. तो पर्टिकुलर सेक्शन ये कहता है कि अगर आपको मैंने एप्लीकेशन फाइल किया हूँ और अगर वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अगर वो बिलोंग करता है हो, तो यू हैव टू टेक रीजनेबल असिस्टेंस फ्रॉम दैट डीम्ड PIO. तो आपको RTA एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54 एंड 55 आपको उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा टू द डीम्ड PIO. अक्सर हमने देखा है कि अभी 19 अक्टूबर में 19 साल हो जाएंगे RTA को आके, अभी भी PIOs को ट्रेनिंग बराबर से दी नहीं गई. उनको वो सेक्शंस के बारे में नहीं मालूम है, उनको किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम है. बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन गोइंग टू यशदा टू गिव PIOs ट्रेनिंग. तो उनको कुछ मालूम ही नहीं रहता है. तो वो क्या करते हैं, सेक्शन 363 है, अगर आपने समझो BMC को अपने एप्लीकेशन लगाई और इफ दैट एप्लीकेशन बिलोंग्स टू MMRDA which is a totally different public authority, then they have to forward the application under section 63 to that public authority. और जब वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं तो they have to at the same time intimate the applicant कि हमने आपका एप्लीकेशन वहाँ पे फॉरवर्ड किया है, एंड हेंस वो जो भी होगा वो पब्लिक अथॉरिटी आपको एड्रेस करेगी. ठीक है. अक्सर ये होता है कि इन लोगों को मालूम नहीं होता है कि भाई सेम पब्लिक अथॉरिटी है, सेम उनके पब्लिक अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, मगर वो 63 के अंतर्गत वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं. सो दिस इज टोटली ग्रॉस वायलेशन ऑफ द RTA एक्ट. एंड उनको जितने भी पब्लिक अथॉरिटी है उनको सही तौर पे ट्रेनिंग भी दी नहीं है. ओके. जैसे कि मैंने आपको बताया, PIO टू रिप्लाई दी एप्लीकेशन इफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व 40 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन. पेनल्टी की अगर हम बात करते हैं तो द PIO कैन बी penalized by the State Information Commission or the Central Information Commission, as the case may be, under Section 20 of the RTA Act 2005, at the rate 250 rupees per day up to a maximum limit of 25,000 rupees. यहाँ पे RTA Act में अगर हम फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी की बात करते हैं तो दे हैव नॉट बीन गिवन एनी, मतलब उनको कोई उनकी कोई अहमियत नहीं दी गई है, उनके ऊपर कोई पेनल्टी दी नहीं गई, उनके ऊपर कोई जवाबदारी ठहराई नहीं गई. अभी बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया कि भाई ऑर्डर टू द PIO कि यू हैव टू फर्निश द इंफॉर्मेशन विद इन द नेक्स्ट 20 days. उसके बावजूद भी PIO जो है वो इंफॉर्मेशन देते नहीं है. देन देयर इज़ अ प्रोसेस कि आप वार्ड ऑफिसर को, अभी मेरा एक एप्लीकेशन है जो टाउन प्लानिंग है, MPMC जो है मेरा देवेंद्र, और फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी ने मैंने सारे प्लान्स सी. द इशू वाज कि देयर वर पीपल, देयर आर अबाउट 20 बिल्डिंग्स इन दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, और बिल्डर ने जो प्रॉमिस किया था वो उन्होंने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया. तो देयर इज अ डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड ऑफ 5 years. Within that 5 years, you have to file a case against them
either a civil case, it could be either a consumer court case, and within that 5 years. तो मैंने क्या किया, मैंने सारे प्लान, सारे अप्रूव ड्राइंग, एवरीथिंग मैंने A to Z उनसे मांगा, उन्होंने दिया नहीं। उसके बाद फर्स्ट अपील में गया हूँ, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है कि 20 दिन या 25 दिन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आपको उनको देनी है। नाउ तब भी उन्होंने दिया नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आपको ऑर्डर देता है और वो अकम्प्लिश नहीं होता है और इट इज़ नॉट अडियर्ड टू बाय द PIO, देन आप एक हटके एक रूट भी यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सेकंड अपील। हाँ, सेकेंड अपील तो आप टेक्निकली करिए, बट साइड बाय साइड आप वार्ड ऑफिसर को, बिकॉज ही इज द मेन पर्सन इन चार्ज, उनको आप लिख के दे सकते हो कि besides being the first appellate authority, he is also got, the first appellate authority has got administrative powers. तो आपको उनको थोड़ा कोक्स करना पड़ेगा, पीछा पड़ना पड़ेगा कि वो आपको इंफॉर्मेशन ऐसा। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जब यूज़ करते हैं तो हम वी यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेनी थिंग्स, बिकॉज वी हैव बीन एक्सपोज, आई हैव बीन एक्सपोज फॉर 43 years। और कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी में कैसा था कि जब मैं शुरू में जब मैं वहाँ पे सीखने गया था, तो वहाँ पे दुनिया भर के कंप्लेंट्स आते, इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लेंट बोलिए तो सोसाइटी के बोलिए तो प्रोविडेंट फंड के बोलिए तो पेंशन के बोलिए, हर किस्म के कंप्लेंट्स आते थे। तो मुझे सीखना था, पैशन था, तो मैं हर एक दिन आई वाज देयर फॉर 3 years इन द कंप्लेंट्स कमिटी, और हर दिन मैं एक एक फाइल निकालता था, स्टडी करता था कि भाई कैसे ड्राफ्टिंग की जाए, उसके पीछे का लॉ क्या है, और आपका कैसा मतलब है जो हमारी सोसाइटी है, न्यूज़पेपर्स में इस किस्म के आर्टिकल, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके क्या आर्टिकल्स आ रहे हैं, उनका क्या टेक है, दोनों जो पेटिशनर है एंड जो रिस्पोंडेंट है, दोनों के व्यूज़। तो ये सारे चीज़ों का थोड़ा होमवर्क करेंगे आप लोग, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू डिमांड दोज इंफॉर्मेशन। बट द ओनली थिंग इज, द ट्रम्प कार्ड इज डोंट लूज योर पेशेंस, डोंट लूज योर टेम्पर, क्योंकि द मोमेंट यू लूज योर टेम्पर यू लूज द बैटल। क्योंकि आज कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, आज आप अपने घर के मैनेजिंग कमेटी को देख लीजिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, उनको एक दफ़ा कुर्सी मिल जाती है तो वो हवा में उड़ने लगते हैं, देन दे थिंक दे आर द लॉ टू देमसेल्फ, जबकि 99% उनको ना बायलॉज के बारे में मालूम है, ना एक्ट के बारे में मालूम है, किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है, दे थिंक दे आर द बॉस ऑफ द सोसाइटी। तो आपको क्या है, मैं हमेशा अपने टॉक्स में कहता हूँ, यू लूज योर पेशेंस, you are angry, you lose the battle. So you have to be very very मतलब you have to mind your tongue, you have to check your body language, and if your application is based on merits, no PIO can refuse information. तो ये सब चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि there have been many activists जिनका मतलब वही था ना कि भाई वेरी एलिगेंट, और शुरू से ही वो था। मेरे लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद जब उन्होंने ये ट्राई किया, आप 3 महीने ट्राई करिए वाइल अप्रोचिंग दी पब्लिक अथॉरिटी, आप 3 महीने आप ट्राई करिए एंड यू सी द मैजिक रिजल्ट, यू विल गेट 100% रिजल्ट। आप भूल जाइए कि भाई आपको लॉ बहुत मालूम है या आपको गुस्सा बहुत आता है, लीव एवरीथिंग असाइड, बी वेरी पोलाइट। तो बोलते हैं ना, जोर का धक्का धीरे से, you have to use that tact. Okay, now information can be denied under section 8, 9, 10 and 11 of the RTI Act. वो आपको एक्ट भी है, रूल्स भी हैं, मैंने कॉपीज लाया, मतलब मैंने सॉफ्ट कॉपीज लाया, I'll give it to you, you can go through that. Section 19(8) gives this SIC, State Information Commission and Central Information Commission to grant compensation to the applicant.
आपको मैं बताऊं कि आई गिव यू लाइव एग्जांपल। मैंने मोबाइल टावर्स को लेके केस किया था। आई टेकन अप द केस एंड जब मैं टाटा वालों के पास जब गया उनके ऑफिस में, तो ये अनेक डिपो में उनका पूरी बिल्डिंग है। आई टेकन अलॉन्ग वन ऑफ माई फ्रेंड, और जब मैं वहाँ पे गया तो पूरी बिल्डिंग में हलचल हो गई कि रेड हो गई। और हमने ऐसे टैग से मैंने बात किया कि उन्होंने जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है ना, वो सारी चीज़ें मुझे, सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दिए। देन इट सो हैपेंड कि बीइंग इन द MCGM एपेक्स कमिटी अंडर द म्युनिसिपल कमिश्नर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मोबाइल टावर्स के ऊपर जो RTI एप्लीकेशन फाइल किए, तो कैसा होता है कि कोई भी एप्लीकेशन आप लगाते हैं MCGM में, यू हैव टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोज बिल्डिंग which have got no occupation certificate, the ward cannot take action. It is only the building and proposal department can take action. तो मैंने दोनों जगह लगाया था, और दोनों जगह ऐसा हुआ कि भाई आपको जो ऑर्डर लिखना है आप बैठ के लिख लीजिए। तो मुझे एक ही लाइन लिखना था कि बिल्डिंग हैज गॉट नो OC। आप समझे ना? तो कहने का मतलब ये है कि इन दिस पर्टिकुलर केस द म्युनिसिपल कमिश्नर वाज, ऑल्दो मैं उसके अंडर में हूँ, बट म्युनिसिपल कमिश्नर को स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बुलाया, एंड जब बुलाया तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेजा। तो रत्नाकर गायकवाड़ वाज देयर, द इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और दीज वर हिज वर्ड्स कि यू गेट आउट ऑफ द ऑफिस, मैंने आपके साहब को बुलाया है, और जब तक मैं उनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजूंगा उनके अब तक ठिकाने नहीं है। These were the exact words to a municipal commissioner। और वही केस में अंडर सेक्शन 19(8) मुझे कंपेंसेशन मैंने मांगा, आई गॉट द कंपेंसेशन, और BMC को मालूम नहीं था कि कंपेंसेशन कैसे दिया जाता है। तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, सब चीज़ GAD ने नोटिफाई किया, और फिर मुझे कंपेंसेशन दिया गया। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस द असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, ही केम टू मी विद अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, और बॉक्स ऑफ स्वीट्स लेके, और वो मुझे कहता है कि आपने मेरी वाट लगा दी। I mean that was something I cannot imagine, something different। तो कहने का मतलब ये है कि आप compensation under 19(8) मांग सकते हैं, ठीक है। Section 9 talks about PIO may reject a request for information where such requests would be involving infringement of copyrights। Section 10 talks about severability clause। अब severability clause में जो है 10(1) के अंदर ऐसा होता है कि आपको, आप पब्लिक इंफॉर्मेशन, आप पब्लिक अथॉरिटी को आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब यानी फ्लैटली आपको रिफ्यूज़ कर दिया अंडर सेक्शन 8 कि भाई सेक्शन 10(1) ऑफ सब सेक्शन 8, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई यू विल इम्पीड दी इन्वेस्टिगेशन है या वट एवर उनका जो रीज़न है वो देते हैं। बट 10(1) सेज कि आप जो पार्ट जो है आप उसको अलग कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यू आर मैंडेटेड टू गिव दैट इंफॉर्मेशन। तो दैट इज़ वेरी मच देयर इन द एक्ट। तो वो आप डिमांड कर सकते हैं, और वो आप फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के सामने जब हियरिंग होगी तो वो आप ये रख सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है काफ़ी बदमाश डिपार्टमेंट है। हम लोगों को भी फर्स्ट एप्लीकेशन में कभी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है जब तक वो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास हम हियरिंग पे हम नहीं बैठे। तो वहाँ पे जब क्या है कि जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो तब उनको समझ में आता है, तो तब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है।
तो वो फ्लैटली रिफ्यूज करते हैं। देखिए आप जो एफआईआर की कॉपी है दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज़ योर राइट, यू कैन गेट इट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो जो डिनाई करते हैं, आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके सेक्शन 1 सब 10(1) ऑफ सब सेक्शन 8 के अंदर आप मांग सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी जो है वो वो उनको नोटिस भेजेंगे कि भाई डिस्क्लोज करना है नहीं करना है। अगर पीआईओ ये फील करता है कि भाई अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है देन ही कैन डिस्क्लोज इट, ही हैव द डिस्क्रिशन। अभी बहुत सारे एसआरए के प्रोजेक्ट्स जो रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो रिहैब जो बिल्डिंग का जो पोर्शन होता है उसके ऊपर भी काफ़ी आरटीआई फाइल हो रही है, आप समझे ना। तो दैट इज लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसमें आप लिख के भेज सकते हैं कि भाई यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर सेक्शन। फोटोकॉपीज जो है आपको नॉर्मली तो 2 रुपीज़ होता है और A3 साइज और A4 साइज का फोटो कॉपी जो होता है, इसके साथ जो आपका अगर आपने डिजिटल फॉर्म में मांगा है इंफॉर्मेशन, CD में मांगा है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट होगा CD का 50 रुपीज़ होता है। और अगर आपने बिल्डिंग ब्लूप्रिंट मांगा है तो जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि एक्चुअल चार्जेस और कॉस्ट फॉर लार्जर पेपर साइज, okay, then actual charges or cost for sample or models. For inspection of record, no fee for the first hour, then ₹5 for every 15 minutes thereafter. अब जैसा कैसा होता है कि जैसा आपने आरटीआई एप्लीकेशन किया और उन्होंने आपको बोला कि भाई इंफॉर्मेशन इज वॉल्यूमिनस, यू प्लीज कम एंड टेक इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के टाइम पे आपको उनको लिख के भेजना है कि भैया जो भी आप फोल्डर दे रहे हैं यू मेक श्योर दैट इट इज ड्यूली इंडेक्स्ड एंड कैटलॉग्ड। ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। देन फॉर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस इट इज़ 50 रुपीज़ CD है। एक्चुअल कॉस्ट जो है आपका टेप्स है, ऑडियो क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं एंड एनी अदर मीडिया फॉर्म है जिस पे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा, जहाँ तक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है, तो आप जो भी एप्लीकेशन करते हैं आरटीआई एप्लीकेशन, तो यू हैव टू अफ्लिक्स 10 रुपीज़ कोर्ट फी स्टैम्प। और अगर आप फर्स्ट अपील में और सेकेंड अपील में जाते हैं तो इट इज़ 20 रुपीज़ कोर्ट फी स्टैम्प। सिमिलरली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी और वहाँ पे अगर आप आरटीआई एप्लीकेशन करते हैं तो द फर्स्ट आरटीआई एप्लीकेशन में आपको डिमांड ड्राफ्ट भेजना है या आप पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आप कोर्ट फीस स्टैम्प आई मीन वो 10 रुपीज़ जो उनका फीस होता है आरटीआई फीस, वो आप जमा कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी पब्लिक अथॉरिटी को आप एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे हो, गो टू देयर वेबसाइट। वो वेबसाइट में आपको आरटीआई का लिंक भी मिलेगा और आरटीआई रिलेटेड उनके पीआईओस कौन है, एपेलेट अथॉरिटी कौन है, थोड़ा सा रिसर्च करिए, you know, so you will be in a better position to demand, you will be in a better position to frame your questions and questions that will point out to the particular information whether it is hard copy or in digital form. ठीक है ना? Then yeah. अभी एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो वैसे तो कहा गया है कि नो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, बट हम ये फॉर्मेट को फॉलो करते हैं कि आरटीआई एप्लीकेशन है, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका एड्रेस में आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए, आप अपना ईमेल आईडी भी डाल दीजिए। सब पर्टिकुलर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन अब क्या है कि जब आपने टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपने लिखा तो उसके नीचे आप मालूम क्या करिए, थोड़ा से फैक्ट्स ऑफ द केस डाल दीजिए, कंसर्न डिपार्टमेंट डाल दीजिए। दीज आर आई मीन ये आप अपने तरफ से डाल दीजिए, यू नो कि वो 2-3 चीज़ आप डाल दीजिए। ओके, देन एड्रेस डाल दीजिए, दादा अपने मोबाइल नंबर डाल दीजिए या आपका ईमेल आईडी डाल दीजिए,
particular of the information required is subject matter of information. Normally subject matter of information you all know बहुत ज़्यादा एक दो शॉर्ट में ब्रीफ में आपको देना है. पीरियड फॉर विच द इंफॉर्मेशन रिलेट्स, आप ये समझ लीजिए कि एज पर द RTI Act 20 ईयर्स तक का आप इंफॉर्मेशन आप मान सकते हैं. ठीक है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. अब यहाँ पर हाँ हाउ डू यू वांट द इंफॉर्मेशन. हाँ नहीं, क्या चाहिए आपको. क्या चाहिए. तो आप मालूम क्या है कि आप उनको जैसा फिल्मों में स्क्रिप्ट हो तो वैसा मत करिए. स्टार्ट विद प्लीज प्रोवाइड कॉपी ऑफ सो एंड सो, प्लीज प्रोवाइड कॉपी ऑफ सर्कुलर है, एजेंडा है जैसा है, या आपका GR है, या आपका जो भी नोटिफिकेशंस हैं. यू पॉइंट आउट टू अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. ठीक है ना. इसमें हाई कोर्ट्स ने कई ऐसे अपना ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं जहाँ पे कैसा होता है कि बीच में इन्होंने निकाला था वन पब्लिक अथॉरिटी वन सब्जेक्ट, या they have limited the words to 150 words. Entire application in the sense right from the address part up to आपने जो भी अपना इंफॉर्मेशन मांगा है वहाँ तक का. कई बार हमारे भी अपना इंफॉर्मेशन जो हम सॉलिसिट करते हैं वो 1 से 2 पेज में भी होते हैं. मगर क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन एन एफिडेविट टू द हाई कोर्ट कि मतलब यानी इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लिमिटेड टू 150 वर्ड, इट इज़ एडवाइजेबल. वो लीगल पैराग्राफ है, लीगल टर्म है, तो यू कैन कोट दैट. आप समझे. तो जो हम करते हैं तो हम हर चीज़ को बैकअप करते हैं हर तरीके से कि अगर हमारा 2 पेज का हुआ, या इफ इट इज़ आपको मालूम है, हम जब RTI एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको वर्ड काउंट भी होता है. अगर आपको लग रहा है कि भाई 150 की जगह 200 जा रहा है तो हम वो हाई कोर्ट के जजमेंट में अटैच कर देते हैं. और समझिए कि कोई मतलब है ना, उनको भागने का रास्ता नहीं है PIO. तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ ट्रिक्स दैट वी डू. दिस इज द फर्स्ट अपील फॉर्मेट. सेम थिंग, आप जब फर्स्ट अपील में जाते हैं तो देखिए कैसा होता है. हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि आपने RTI एप्लीकेशन फाइल की, 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. वो आपको ऐसे भी बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो आपको बातचीत के जरिए टालते हैं बात को, सो दैट यू एक्सीड द टाइम लिमिट. तो आपको क्या करना है, आपको वो बातचीत कम्युनिकेशन मेंटेन रखना है, समझे. बट टेक्निकली स्पीकिंग एज पर द RTI Act 30 डेज में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, आप 2-3 दिन रुक जाइए, इमीडिएटली फाइल द फर्स्ट अपील. ठीक है. 45 डेज अगर हो गया, अगर आप 1 हफ्ता रुक जाइए 45 डेज के बाद, और टेक्निकली स्पीकिंग आप विद इन द नेक्स्ट 90 डेज आप सेकेंड अपील फाइल करते हैं. बट 45 डेज खत्म हुआ, गिव देम अ ग्रेस पीरियड ऑफ से 1 वीक एंड इमीडिएटली गोइंग फॉर द सेकेंड अपील. हम हमेशा कहते हैं कि इसमें देखिए कैसा होता है कि इसमें नॉर्मली दे आस्क कि भाई यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड AD और इन पर्सन. तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं एप्लीकेंट को, आप उनको कन्फ्रंट मत करो, डोंट हैव एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. आप उनको बोलो रजिस्टर्ड AD से आपको जो भी भेजना है आप रजिस्टर्ड AD से भेजो. तो जितना मिनिमम क्या होता है कि आप जाओगे फिर आप एक के बजाय 10 बात करोगे, they will get a loophole. So it is better not to go physically. Tell them कि I want my registered post AD. ठीक है. आप जब एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आप फिजिकली जाएं तो अच्छा होता है. डिस्पैच सेक्शन में आपने एप्लीकेशन फाइल की, मगर हम लोग क्या करते हैं, जस्ट टू सेव टाइम हम स्पीड पोस्ट से भेजते हैं. सो दैट इज अनदर मोड कि आपका एप्लीकेशन भी पहुंचता है और आपको आपका वो स्लिप भी रहता है, रिसीट, जो यू कैन कीप इट विथ यू दैट यू हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन ऑन सो एंड सो डेट. ठीक है ना. फर्स्ट अपील में यू हैव टू मेक श्योर दैट आपने आपका RTI एप्लीकेशन फाइल आपने अटैच किया.
उसके साथ में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपको मिला है वो आप उसके साथ में उसका जेरॉक्स कॉपी अटैच करें। बहुत बार ऐसा होता है ना कि ग्राउंड्स ऑफ अपील जो होता है तो उसमें आपको ये मेंशन, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको उन्होंने इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया या उन्होंने आपको मैलिफाइड इंफॉर्मेशन दिया, उन्होंने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया या आपने कुछ मांगा उन्होंने कुछ और दिया। तो आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील में वो सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। फॉर द फर्स्ट अपील यू हैव 45 days। 45 days के बाद give them a grace period of 1 week and then technically speaking without any further delay second appeal आप फाइल कर दें। उस बीच में ऐसा भी हुआ है कि मैं सेकेंड अपील आपने फाइल किया और आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, सो देन वेरी वेल यू कैन से कि भाई जब आपको सेकेंड अपील का इंटीमेशन आएगा तो यू कैन से कि आई हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन, काइंडली डिस्पोज ऑफ दिस एप्लीकेशन, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड अपील में आपको आरटीआई का फर्स्ट एप्लीकेशन का जेरॉक्स कॉपी सारे कॉरेस्पॉन्डेंस आपको अटैच करने हैं। आपने फर्स्ट अपील किया, फर्स्ट अपील के साथ में वेदर यू गॉट द ऑर्डर यू डिडंट गेट द ऑर्डर, ऑर्डर मिला तो उसका ऑर्डर का कॉपी आप अटैच करिए। एनी फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस जो हुआ है वो सारी चीज़ें आप अटैच करिए, गो इन फॉर अ सेकेंड अपील, ठीक है ना। आज तो ये हाल हो गया है कि 2-2 साल हो जाते हैं सेकेंड अपील आते ही नहीं। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट MCGM, वो ये MPMC का जो मैटर है उसमें 1 साल हो गया मुझे। ओके, व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट्स? सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी अगर है तो आप बैंकर्स चेक भी लगा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट लगा सकते हैं, IPO लगा सकते हैं इन फेवर ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। यहाँ पर यू नीड टू डू ड्यू डिलिजेंस। वो पब्लिक अथॉरिटी के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे देखिए कि RTI किसके फेवर में आपको फीस भरनी है, वो सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं, यू हैव टू मेंशन दैट। ये आप अपने तरफ से एक एडिशनल वो कर सकते हैं आप, यू नो, हाँ, ड्यू डिलिजेंस। ओके, और स्टेट पब्लिक अथॉरिटी जो है उसमें आपको कोर्ट फी स्टैंप लगाना है। फर्स्ट RTI एप्लीकेशन में 10 रुपीज़ का लगाना है और फर्स्ट एंड सेकेंड अपील में आपको 20 रुपीज़ कोर्ट फी स्टैंप लगाना है। अब वो आपको मालूम है कि भाई 5 रुपये वाला भी मिलता है, 10 रुपये वाला मिलता है, तो 5 रुपये वाला मिला तो आप 2 लगा दीजिए, बट इट शुड बी 20 रुपीज़ इन टोटलिटी, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी है तो आपको डिमांड ड्राफ्ट है, IPO लगाना है ओनली फॉर द RTI एप्लीकेशन। As far as the first and second appeal is concerned, there is absolutely no fees involved, ठीक है। कोर्ट फी स्टैम्प ऐसे दिखता है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर ऐसे दिखता है। इसके लिए अगर आप रेगुलर अगर कुछ RTI कर रहे हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, उनको बोलिए पोस्टल ऑर्डर चाहिए तो वो दे देंगे। अब कैसा है कि मैंने बहुत सारे PILs किए हुए हैं और उसमें हम राइट टू इंफॉर्मेशन का हम यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव टूल, आप समझे। तो अभी जैसा कि मैं आपको बताऊं, बॉम्बे लिफ्ट एक्ट दैट वाज 75 years old, टोटली ऑब्सोलीट। बॉम्बे लिफ्ट रूल भी 58 मतलब मैंने 70 years old है। मेरा PIL का पिटिशन था और उसमें मैंने पूरे एक्ट को चेंज करवाया और अभी ये एक्ट चेंज हुआ है, अमेंड हुआ है 2017 में, ओके। एंड अभी रूल्स वो लोग 5 साल की उनको डील दी, तो अभी तक वो मंत्रालय में मतलब मैंने वो पेंडिंग है रूल्स, वो रूल्स को नहीं कर रहे हैं वो लोग, नोटिफाई नहीं कर रहे हैं बिकॉज दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ माय PIL जहाँ पे मैंने डिमांड किया था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस शुड बी देयर। आपको अच्छी तरह मालूम है कि बॉम्बे में लिफ्ट के बहुत सारे हादसे हो रहे हैं,
तो जिनके पास पैसे हैं तो वो तो इलाज करवा रहे हैं, मगर जिनके पास पैसे नहीं है, बिकॉज लिफ्ट एक ऐसी चीज़ है, ठेले वाला केले वाला सब जो सब यूज़ करते हैं, है कि नहीं? तो वो बेचारे गरीब लोग वो कैसे मतलब यानी अपना इलाज कराएंगे अगर उनके साथ में लिफ्ट को रिलेटेड कोई हादसा हो जाए तो वो मैंने डिमांड किया कि भाई इमीडिएट कुछ पेमेंट उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपने जो भी मतलब हादसा हुआ है उसमें अपने लोगों का इलाज करवाएं। तो अभी क्या है कि आई विल बी फाइलिंग अ PIL, तो अभी उसके लिए मैं अभी RTI फाइल करने वाला हूँ इन अ डे और टू, ठीक है। सेकेंड चीज़, जैसा कि मेरा एक बहुत दूसरा MRP का जो वायलेशंस था उसके ऊपर बहुत मैंने PIL किया था, उसमें भी वेरी इफेक्टिवली आई हैड यूज द RTI एक्ट, और मेरे PIL की वजह से ये जो फाउंटेन जो देखते हैं ना आप सिटी मैक्स में और ये सब जगह में थिएटर्स में, तो वो फाउंटेन पहले तो वो बॉटल में देते थे और दे वर चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट कोल्ड ड्रिंक्स, ओके। तो मेरे PIL के वजह से वो रूलिंग पास हुआ और देन दे स्टार्टेड यूजिंग दैट फाउंटेन, ठीक है ना। देन सिमिलरली PIL मेरा था कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अक्रॉस महाराष्ट्र, तो जितने भी 37 डिपार्टमेंट्स इन एंटायर महाराष्ट्र थे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप RTI तो एक टूल है, मगर आपको यू हैव टू यूज़ दिस साइकोलॉजिकली भी और आपके बॉडी लैंग्वेज को और वो सारी चीज़ों आपके ज़बान को काबू में रखते हुए आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो जब मैं अपना ये शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के लिए किया तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद आगे आए, दे कोऑपरेटेड विद मी राइट अप टू द एंड, और उन्होंने इट टुक मी अबाउट 1 year टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत वास्ट था ना, सैंक्शन पोस्ट, फील्ड पोस्ट, वेकेंट पोस्ट, दुनिया में। और जब लास्ट डे जब मैं फाइल करने गया PIL, तो रोटो नोटरी ने कहा कि भैया हमने कौन सा गुनाह किया, हमारा को भी इंक्लूड करो। तो फिर उनके साथ में बैठ के फिर उनका भी मैंने इंक्लूड किया PIL एंड देन आई फाइल्ड। बट देन उसका नतीजा ये हुआ कि द हाई कोर्ट सेड दैट दे कांट इशू अ ब्लैंकेट ऑर्डर। आप ये 37 छोड़ दीजिए, आप जो इम्पोर्टेंट है वो लेके आइए, हम उस पर फेवरेबल ऑर्डर इशू करेंगे। नहीं, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2010। आप समझे ना। उसके बाद क्या है कि वी हैव बीन वर्किंग ऑन सो मेनी इश्यूज, डाइवर्स इश्यूज, कि फिर वो पलट के वहाँ पे देखने का टाइम नहीं मिला। ओके, तो आप लोग को क्या है, जब अगर आप PIL कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जो आपके काम आ सकता है। आप समझे ना। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जैसा मैंने आपको बताया कि बॉडी लैंग्वेज एंड माइंड योर टंग। अगर हम एक पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिशियल को अगर हम उनके शूज में अपने आप को डालें, तो अगर आप समझ लीजिए कि आप यू आर एन ऑफिसर, आज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को ले लीजिए या कोई भी संस्था को ले लीजिए, हर इंसान को बहुत ईगो है, ठीक है। तो मैं अपने लेक्चर्स में यही कहता हूँ कि अगर मुझे आपसे कोई चीज़ चाहिए, यू आर एन ऑफिशियल, तो 2 तरीके, थप्पड़ मार के लूँ या ठुड्डी में प्यार से हाथ फेरा के लूँ। तो अगर आप ऑफिशियल रहेंगे, आप क्या प्रेफर करोगे? प्यार से। तो ये एक सिंपल लॉजिक, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो नॉर्मल सिटीजन हो, वो अगर यूज करें तो दे विल बी वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। इफ यू फॉलो व्हाट आई टेल यू फॉर 3 to 4 months while approaching different authorities, you will get 100% result. मैंने मेरे बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों का जिनका बहुत एरोगेंस था, they are a changed person totally, और वो कहते हैं, वो इवन लॉयर्स मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, वी आर गेटिंग स्वीपिंग रिजल्ट्स। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोगेंस विल नॉट टेक यू एनीवेयर।
तो यू हैव टू यूज, बोलते हैं ना, ब्यूटी एंड ब्रेन्स, आपको दोनों यूज करना है, और योर पेन ऑफ कोर्स. Okay, once equipped with information and evidence got under the right to information, one must exhaust all other remedies before approaching the high courts or Supreme Court for filing a PI. आप समझे? तो जब आप PI फाइल करते हैं और आपके पास RTI के सारे इंफॉर्मेशन हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको उनको अप्रोच करना चाहिए. यू हैव टू गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट, और आप मांगो उनसे कि भाई आप इस दिशा में ये लकुना है, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं. ट्राई अगेन टू गेट इट इन राइटिंग. आपने उनको ऑफिशियली लेटर लिखा, अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया, वेट फॉर 15 days, फाइल एन RTI. और RTI में स्टेटस ऑफ माई कंप्लेन या स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन ऐसा फाइल कर दिया. And then you see the effect. Tips for drafting an RTI application. Again, as I said, first ask yourself, why do I need this information? जब आपको मालूम है, जब शुरू में जब RTI एक्ट आया था, तो हम भी नए थे, हम भी जोश में थे, समझे. तो जब कभी PIO कहता था तो बहुत सारे हमारे एक्टिविस्ट ये कहते थे कि जो इंफॉर्मेशन है, क्या है, ठंडी का मौसम है दिल्ली में, तो हमें गर्मी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, उसको जलाएंगे और गर्मी लेंगे. You know, in a very sarcastic way. So you don't have to adapt to that. So you have to ask why you require that information. Acha, what will I do with the information that I obtain? Be clear about what you want to ask. Be specific and to the point. क्या होता है, मैं आपको बताऊं, RTI से थोड़ा अलग लीजिए, बिकॉज आई मतलब यानी कंप्लेन ग्रीवेंस जो होती है, दैट हैज बीन माय पैशन. चाहे कोई भी चीज़ हो, बिटवीन द स्काई एंड द लैंड, मैं सब में हाथ डाला हूँ. ठीक है ना. तो एक मिनट, आई एम सॉरी, समटाइम क्या होता है, आई फॉरगेट. ओके, सो हाँ, तो मैंने अक्सर देखा है कि अभी समझो आपको 2-3 कंप्लेन करना है और आपको RTI फाइल करना है. तो जब आप कंप्लेन करते हो, तो अगर आपका नॉर्मली आप समझ लो कि ट्री ट्रिमिंग को लेके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ट्रिम करना है ट्री को, तो आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अप्रोच करना है. यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, यू हैव टू सबमिट द फोटोग्राफ, you have to get the inspection done. तो you have to understand, आप जो भी चीज़ कर रहे हो, तो उसके बैकग्राउंड में आपको रिसर्च करना है कि क्या चीज़ इन्वॉल्व है, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको. तो लोग क्या करते हैं कि एक कंप्लेन लेटर में, भाई मेरे को ट्री भी ट्रिम करना है, मेरे को स्पीड ब्रेकर भी बनाना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को सारी चीज़ें वो एक ही में डाल देते हैं. तो क्या होता है कि जो पहला कंप्लेन है वो एड्रेस होता है, और बाकी का जो है बिल्कुल आपके डस्टबिन में चले जाता है. सबके अलग-अलग करना चाहिए. तो आपको रिसर्च करना है कि आपके पास 5 कंप्लेंट्स है, विच डिपार्टमेंट डज इट बिलोंग. क्या ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है या ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में. तो यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड रिसर्च करके देन यू फाइल अ कंप्लेन एंड देन यू फाइल एन RTI एप्लीकेशन. देखिए, RTI एप्लीकेशन में ऐसा है कि अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आता है कि किसके पास भेजना है, तो अगर BMC की बात करें, आप सीधा वार्ड ऑफिसर के पास भेज दीजिए, एंड देन यू मेंशन कि अंडर सेक्शन 54 and 55 प्लीज फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन to the deemed PIO as you deem fit, feel deemed fit. ऐसा करके आप अप्लाई कर दिए, ऑटोमेटिकली वो आदमी को पहुंच जाएगा. बट जब आप कंप्लेन करते हैं, तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आपको कंप्लेन किस के लिए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और आपको कहाँ से इसका समाधान होगा. आप समझे ना. क्या होता है कि जैसे कि इलीगल इंक्रोचमेंट बोलिए या एडिशन एंड ऑल्टरेशन बोलिए,
और जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, द लोकल वार्ड कैन नॉट टेक एक्शन। अब क्या होता है, आप एप्लीकेशन फाइल किए, नॉर्मल सिटीजन की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन फाइल किए, फिर आप लोकशाही दिन में गए, वार्ड ऑफिस में लोकशाही दिन होता है, फिर आप बीएमसी ऑफिस में लोकशाही दिन में जाते हैं, आपको वो घुमा के 1 साल घुमाते हैं और एंड में बोलते हैं कि भैया ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो सॉरी बॉस, वी कैन नॉट टेक एक्शन। देन यू हैव टू गो टू द बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट। तो आपको ये सब जानकारी होना ज़रूरी है, जो आज के तारीख में भी 99%, बिकॉज आई एम इन द एपेक्स कमेटी, तो सारी चीज़ें, टेंडरिंग कैसे होती है, उसका प्रोसेस कैसा होता है, कैसे घुमाते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, वो सब हमें मालूम है। तो हम सारी चीज़ें स्टडी करके फिर हम एप्लीकेशन करते हैं, तो उसका वजन पड़ता है। तो अभी एपेक्स कमेटी में भी कैसा होता है कि आई हैव बीन अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। देयर आर ओनली 2 ऑर्गेनाइजेशंस इन द एंटायर, वैसे तो हज़ारों में एनजीओज हैं, बट देयर आर ओनली 2 ऑर्गेनाइजेशन जो रिप्रेजेंट करती है एमसीजीएम एपेक्स कमेटी। आई एम वन ऑफ देम एंड 24 वार्ड कम्स अंडर मी। तो 24 वार्ड का ऐसा नहीं है कि मतलब हमने एक सिर्फ पेपर वर्क किया, पूरी रात जागे मीडिया के साथ में, मीडिया को कंटेंट बना के दिए, मीडिया को फोटोग्राफ बना के दिए, हमने ये बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन को लेके पूरी रात हमने काम किया है और मतलब मैंने पकड़ा है लोगों को, केसेस मतलब यानी आई हैव बीन इनटू मेनी थिंग्स इन दिस 4 years। सो कहने का मतलब ये है, बी सेंसिबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ए 3 की फैक्टर है। एक तो आपके पास आरटीआई एक्ट है, आपको बॉडी लैंग्वेज संभालनी है, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट विद योर अप्रोच एंड योर बॉडी लैंग्वेज। ये चीज़ों को आपको करना है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आपको सिर्फ सक्सेस नहीं मिलेगी, सामने पीआईओ वाला आपको चाय और नाश्ता भी कराएगा। आपको वो डेवलप करना है, क्योंकि देखिए कैसा होता है, आई बिलीव सामने वाले को इतना रिस्पेक्ट दे दो कि वो मजबूर हो जाए आपको रिस्पेक्ट देने। सो यू हैव टू अप्लाई नॉट वन पर्टिकुलर थिंग, कंसोलिडेट करके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको वो चीज़ का समाधान आपको ढूंढना है, ठीक है ना। जैसे कि फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन में बताया, यू हैव टू स्टार्ट। हम देखते हैं आरटी एप्लीकेशन, हमने ऐसे भी देखे हैं कि पूरा कि भाई हम गए थे ऑफिस ग्राउंड्स ऑफ अपील में, कि हम इनके ऑफिस में गए थे, इन्होंने 2 गाली दे दी, हमने चाप दे दी। वो पूरा फिल्म का जो स्क्रिप्ट होता है आपको नहीं लिखना है, यू हैव टू मेंशन प्रोवाइड कॉपी। नाउ बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पीपल दे आस्क फॉर सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी क्या होता है कि आप अगर नॉर्मल आरटी एप्लीकेशन करते हो और कॉपी मांगते हो, तो इन एनी केस देयर इज अ सर्कुलर जहाँ पे आपको हर पेज पे आपको आरटीआई का स्टैंप लगा के देंगे। सो इफ यू आर अप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट बिकम्स वेरी ऑथेंटिक। मगर जब आप सर्टिफाइड कॉपी मांगते हो, तो जहाँ पे अगर आपको 1 रुपया वो चार्ज करने वाले हैं, तो आपको 100 रुपया चार्ज करेंगे। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। Don't go in for the certified copy. Ask for a normal copy, but make sure every page is having a stamp of RTI. Okay? So आपको यही से स्टार्ट करना है कि भाई provide copy of the circular, GR, minutes of the meeting, agenda, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से करना है, आपको पूछना है। Right to information is a fundamental right granted to you under the Indian Constitution, जो मैंने आपको बताया। Okay, then likewise, please understand that the PIO or the first appellate authority is first a human being, a citizen of this country, and then a government servant. तो आप उनको आपके तरीके से आप उनको इमोशनली कॉर्नर कर सकते हैं। You have to be smart enough to do that.
और आप लोग लॉ स्टूडेंट हो तो फिर आपको तो बताने की जरूरत नहीं है. ऑलवेज चेक योर बॉडी लैंग्वेज. जो 99% लोग फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज व्हाई वेयर द फेलियर कम्स. Okay. You adhere to this and I guarantee you 100%, not 99%, 100% आप देखो आपके लाइफस्टाइल में 100% चेंज आएगा. जो लोग आपसे बदतमीजी से बात करेंगे पब्लिक अथॉरिटी, वो आपको बैठा के चाय पिलाएंगे. As I usually say, Right to Information Act 2005 is a powerful tool in the hands of the citizen. It is up to the citizens to use it in a responsible manner and for a bona fide purpose only.